پر دین کی خاطر لڑتا رہا ہمت نہیں ہارا کربل صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چونکہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے حسن گلدستے سماعت کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر نقیب اعظم ہندوستان حضرت حافظ قاری شبیر حسین صاحب قبلہ اور منبر نور پر جلوہ بار ہیں اور شہنشاہی ترنم جناب اسلم مجاہدی صاحب قبلہ وہ بھی منبر نور پر جلوہ بار ہیں. بس کچھ ہی دیر کے بعد آپ ان سے ملاقات کریں گے اور میرے بعد ادیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مختار عالم صاحب قبلہ چترویدی سے بھی آپ حضرات ملاقات کریں گے. کیونکہ وقت کم ہے, کہیں اور جانا ہے. بس میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارائن موتی کونین رسول وفا وجہ الصفا نور الندى کنز العطا کشف الغطا سر الوہا بحر المنن نہر السنن شفیع الامم صاحب جود و کرم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش کرے پڑھے باوز بلا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور سجدے جو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے, سجدے جو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اور جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے, جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے, شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. عذاب کو نماز کو رسول کے بیان کو, عذاب کو نماز کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے, کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجا, جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجا. چونکہ حضرات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا.
ओ अली, हजरत इमाम हसन हुसैन के वाली, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, हजरत मौला अली। हजरत अली है, मदीने की सरजमीन है। उस वक्त दुनिया अबू जहल को दौलतमंद कहती थी, सरबत वाली कहती थी। अबू जहल के पास एक सहीफा पहुंची और अर्ज करने लगी कि ऐ अबू जहल, दुनिया तुझे दौलतमंद कहती है, दुनिया तुझे सरबत वाली कहती है। ऐ अबू जहल, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ अता कर दीजिए। जैसे ही अबू जहल सुनता है, अबू जहल ने कहा कि ऐ सहीफा, जा अली के पास जा, अली तुझे कुछ अता कर देंगे। इसलिए कि अबू जहल जानता था कि अली के घर में दिन दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, अली भी भूखे हैं, हसनैन करीमैन भी भूखे हैं, मौला अली भी भूखे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा भी भूखी है। अबू जहल यही सोच कर कहा कि जब अली कुछ नहीं अता करेगा तो अली जिस नबी को मानता है, अली जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, उस मजहब का मजाक उड़ाया जाएगा, उस नबी का मजाक उड़ाया जाएगा। यही सोचकर अबू जहल ने कहा कि ऐ सहीफा, जा अली के पास, अली तुझे कुछ अता कर देंगे। ओ सहीफा अली के पास पहुंची और कहती है, ऐ अली, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ अता कर दीजिए। जैसे ही हजरत अली सुनते हैं, अपने सर को आसमान की जानिब उठाते हैं, फिर सर नीचे करते हैं, फिर आसमान की जानिब अपने सर को उठाते हैं, फिर सब नीचे करते हैं, फिर हजरत अली अपने सर को आसमान की जानिब उठाते हैं, फिर सब नीचे करते हैं। अली फरमाते हैं, ऐ सहीफा, लेने के लिए कुछ लाई हो? ओ सहीफा अर्ज करती है, हाँ अली, मैं अपने साथ एक थैली लाई हूँ। अली फरमाते हैं कि ऐ सहीफा, ला अपनी थैली मेरे करीब ला। ओ सहीफा अपनी थैली अली के हवाले करती है। हजरत अली अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और मुट्ठी पर दम करते हैं, फिर सहीफा की थैली में अपनी बंद मुट्ठी खोल देते हैं, फिर हजरत अली अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और मुट्ठी पर दम करते हैं, फिर सहीफा की थैली में अपनी बंद मुट्ठी खोल देते हैं, फिर हजरत अली अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और मुट्ठी पर दम करते हैं, फिर सहीफा की थैली में अपनी बंद मुट्ठी खोल देते हैं और फरमाते हैं, ऐ सहीफा, जा, चली जा, जा, तेरा काम हो गया, जा, तेरा काम हो गया। ओ सहीफा वहां से वापस पलटी तो देख रही है कि जब से अली ने अपनी बंद मुट्ठी पर दम किया है और मेरी थैली में खोला है, उस वक्त से मेरी थैली भारी हो गई है, मेरी थैली वजन हो गई है। अब वो सहीफा अपनी थैली खोल कर नहीं देखती है कि अली ने मुझे क्या अता किया है। और सीधे अबू जहल के पास पहुंची। अबू जहल ने कहा कि ऐ सहीफा बता, अली ने तुझे क्या अता किया? ओ सहीफा अर्ज करती है, ऐ अबू जहल, अली ने मुझे क्या अता किया मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से अली ने अपनी बंद मुट्ठी पर दम किया है और मेरी थैली में खोला है, उस वक्त से मेरी थैली वजन हो गई है, भारी हो गई है। अबू जहल ने कहा, ला अपनी थैली मेरे करीब ला। और सहीफा अपनी थैली अबू जहल के हवाले करती है। जैसे ही अबू जहल उस थैली को खोल कर देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि पूरी थैली अशरफियों से भरी हुई है।
पूरी थैली अशरफियों से भरी हुई है। अबू जहल ने कहा कि ज़ईफा, मैं तो जान रहा था कि अली के घर में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, ये अशरफिया कहाँ से अता किया? क्या अली से पूछ कर गया? ओ ज़ईफा फिर वापस पलटी और अली के पास पहुंची और कहती है, ऐ अली, बता दिया जाए कि आपने ये अशरफिया कहाँ से अदा किया? आखिर आपके अंदर ये ताकत कहाँ से आई? आपको ये लियाकत कहाँ से मिली? आपको ये सलाहियत कहाँ से मिली? तब अली जवाब देते हैं, ऐ ज़ईफा, सुन, ये अली की ताकत नहीं है, ये नबी की ताकत है। मैंने अपने नबी पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ करके अपनी बंद मुट्ठी पर दम किया है और तेरी थैली में खोल दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी थैली अशरफियों से भर गई। तो नबी फरमाते हैं, औलम नास भी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाम, कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद पाक भेजा हो। बस आखिरी बात आप सुन लें, क्योंकि ताज़-ए करबला, तारीख़े करबला, आप हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा व मौलाना मुख्तार आलम साहब किबला चतुर्वेदी से आप हज़रात सुनेंगे, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। बस आखिरी बात सुने कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुस्तहकम अकीदा है कि हम और आप अपने नबी पर दरूद पाक भेजते हैं। मेरे नबी हमारी आवाज को भी सुनते हैं और हमारे चेहरे का दीदार भी करते हैं। ये हमारा और आपका मुहज़्ज़ब अक़ीदा है। आपके ज़हन के हाशिए पर ये सवाल पैदा होता होगा कि मेरे नबी मदीने में है और यहाँ से हम अपने नबी पर दरूद पाक भेज रहे हैं, तो क्या मेरे नबी मेरी आवाज को सुन रहे हैं या मेरे चेहरे का दीदार वो कैसे कर रहे हैं? बस इस सवाल का जवाब आप सुन लें कि अजमेर शरीफ की धरती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर 53 ईयर्स यानी 53 साल तक हुकूमत की है, वो एक दिन मज़ारे ख्वाजा पे जाते हैं और सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या हिंदल वली। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा हजरत औरंगजेब आलमगीर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या ख्वाजा गरीब नवाज। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा हजरत औरंगजेब आलमगीर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मज़ारे ख्वाजा से आवाज आती है, वालेकुमुस सलाम या हुज्जती, वालेकुमुस सलाम या हुज्जती, वालेकुमुस सलाम या हुज्जती। हजरत औरंगजेब आलमगीर हाथ बांधे खड़े हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मज़ारे ख्वाजा, जब मैंने पहली दफा सलाम किया तो आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया। जब मैंने दूसरी दफा सलाम किया तो आपने मेरे सलाम का जवाब न दिया। जब मैंने तीसरी दफा सलाम किया तो आपने मेरे सलाम के जवाब में फरमाया, वालेकुमुस सलाम या हुज्जती, वालेकुमुस सलाम या हुज्जती, वालेकुमुस सलाम या हुज्जती। तब मज़ारे ख्वाजा से आवाज आती है, ऐ औरंगजेब, जब तू पहली मर्तबा सलाम किया था उस वक्त में मक्के में खाने काबा का मैं तवाफ कर रहा था, और जब तू दूसरी दफा सलाम किया उस वक्त मैं मदीने में रसूल की जालियों के सामने दरूद सलाम की डालियां निछावर पेश कर रहा था। और जब तू तीसरी दफा सलाम किया तो मैं मदीने से अजमेर में आकर
وہی خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جنہوں نے کہا تھا شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین پناہ اشت حسین سرداد ناداد دست دستری یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسن حسین یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہو آغاز باب تھا زندہ باد پائندہ باد یاد حسین زندہ باد وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم